नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर की सीरीज़ में आज हम लोग प्रायोरिटी क्यू के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्यू के बारे में पढ़ा था, क्यू के एप्लीकेशंस देखे थे, लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के बारे में देखा था, लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन, एरे और लिंक लिस्ट दोनों से देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने डबल एंडेड क्यू देखा था, एंड देन वी हैव सीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डबल एंडेड क्यू विद द लिंक लिस्ट. We have also seen that when we are implementing the double ended queue, then the doubly linked list is the best suited data structure. आज के लेक्चर में हम लोग प्रायोरिटी क्यू के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू के बारे में पढ़ेंगे. We will then see what are the different primitive operations on the priority queue. We will see what are the possible ways by which the priority queue can be implemented. We will see the array implementation of the priority queue, linked list implementation of the priority queue, and then we will see the heap implementation of the priority queue. So आइए थोड़ा सा रिकैप करते हैं और क्यू के बारे में दोबारा से देखते हैं. We have seen that the queue is a kind of the data structure which will be required for the situations wherein we require first in first out operation or first come first serve operation. So queue are the ordered collection of items. We follow the first in first out order into which the data elements can be inserted at one end called the rear of the queue and removed from another end called the front of the queue. So there are two ends in the queue. One is the rear end where the insertions take place, and one is the front where the deletions take place. Now इन क्यू अगर हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अलावा एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो जिससे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए जिनकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है और वो लाइन को तोड़ के एंड देन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट उनकी हो, देन वी विल से दैट वी रिक्वायर अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन की बात कही जा रही है जहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अलावा हम ऐसी सिचुएशंस में डील करना चाहते हैं जहाँ पे प्रायोरिटीज़ असाइंड हैं और सर्विसेज प्रायोरिटी बेस्ड हैं. जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको जल्दी सर्विस मिलना चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको बाद में सर्विस मिलना चाहिए. सो वी विल हैव अ सिचुएशन जिसमें हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो प्रायोरिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता हो. तो प्रायोरिटी क्यू के बारे में देखते हैं. यहाँ पे एक ऐसा क्यू है जिसमें एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब डिलीशन उनका होगा या जब सर्विसेज उनको मिलेंगी, देन दे विल फाइंड द सर्विसेज इन द प्रायोरिटी बेसिस. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स हियर इन दिस बॉक्स. These elements have been inserted at the different time, but when we will give the service, then element number 1 will be given the service first because element number 1 is the highest priority element. हम यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं कि अगर नंबर छोटा है तो ज़्यादा प्रायोरिटी है, अगर नंबर बड़ा है तो कम प्रायोरिटी है. ऑब्वियसली एक सेंस में अगर हम देखें तो 1 मीन्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी, 2 मीन्स लेस प्रायोरिटी, 3 मीन्स इवन लेस प्रायोरिटी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो एज द नंबर ग्रोज द प्रायोरिटी इज डिक्रीजिंग and 1 will be considered to have the highest priority. So priority queue is a collection of data elements on the basis of the priority. Operations which we are expecting from the priority queue is the insertion and the deletion of either the minimum element or the maximum element. In case we are considering that lower number means higher priority, then we will be expecting the minimum element to get deleted, and in case we are assuming that higher number means greater priority, in that case we will be expecting the deletion of the maximum element. Okay. If we have the equal priority element in our queue, in that case we will perform the first come first serve basis deletions. For example, in case we have a number 10 which is inserted in the priority queue at, let's say, some point of time t, and at t plus 5 time another element comes that is also have the value 10 or the priority 10, then the element 10 which has actually arrived at t time will be given the priority. It means this will be the first element to get deleted
and this 10 will be deleted next. So, in case we have the equal priority element, then we provide the service on the basis of their arrival times. Now, what are the different applications of the priority queue? What are the different situations wherein we can find out the application of the priority queue? In case you have a printer and you want to provide the printing on the basis of the length of the paper, then in case the length is small, you will give that a priority because that will be getting printed in a very quick succession. So, if you want to print the documents on the basis of the length of the document, then you can use the priority queue. In case you have the packets, if in case you have the data items to be sent over a network, in that case the data item which is urgently required will be sent first, and the data items which are not required at the moment can be held for some time. So, यहाँ पे routing of packets अर्जेंसी के बेसिस पे अगर हम करना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज़ करेंगे प्रायोरिटी क्यू का। हमारे पास अगर सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इस पे बहुत सारे जॉब्स के सबमिशन हैं, तो इन जॉब्स को हम कुछ प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हों जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस हों जिनकी रिक्वायरमेंट या जिनकी अर्जेंसी ज़्यादा है एग्जीक्यूशन की। कुछ यूज़र प्रोसेस हो सकते हैं, उनकी अर्जेंसी कम होगी। सो हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं, हम इन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी डिफाइन कर देते हैं, और जिसकी भी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में हमें एक प्रायोरिटी क्यू की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन सॉर्टिंग है। अगर हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं जिससे कि सॉर्टिंग करने के लिए हम पहले सबसे छोटे एलिमेंट को डिलीट करते हैं, देन उसके बाद उससे बड़े एलिमेंट को डिलीट करते हैं, या अदरवाइज हम सबसे पहले सबसे बड़े एलिमेंट को डिलीट कर दें या उससे छोटे एलिमेंट को डिलीट कर दें, देन वी कैन से दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ प्रायोरिटी क्यू फॉर द सॉर्टिंग ऑफ द डेटा। Then in case we have to compress the data item using the Huffman coding like algorithm, in those situations also we use the priority queue. ग्राफ के एप्लीकेशंस में दो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे डेटा प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री अगर हमें फाइंड करना है यूजिंग द प्रिम्स एल्गोरिथम, देन वी डिलीट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द की, and smallest key is deleted first and the higher keys are deleted next. So, we use the priority queue for finding out the minimal spanning tree in the graph. And the last one is the finding out the shortest path. We can use the Dijkstra's algorithm, and the Dijkstra's algorithm make use of the priority queue. So, these are some of the applications of the priority queue. There are many more, but these are the basic applications based on which you can make an understanding that this priority queue is a very important data structure. Now, अब हम समझते हैं कि priority queue को implement कैसे किया जा सकता है. So, there are several implementations possible for the priority queue. सबसे आसान तरीका है कि आप एक unordered list या unsorted list ले लें, array ले लें और उससे अपने priority queue को implement कर दें. दूसरा तरीका है कि आप unsorted linked list ले लें, या फिर आप सॉर्टेड एरे ले लें या सॉर्टेड लिंक लिस्ट ले लें। इन सब से भी आप प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे एफिशिएंट वे है कि हम बाइनरी हीप का यूज़ करके प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 ways by which the priority queues can be implemented. Now let us see the first implementation of the priority queue, which is through the array. मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है। अनसॉर्टेड एरे में जब भी हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, सो इट विल रिक्वायर ऑर्डर ऑफ एन टाइम। सो हम अवॉइड करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट से या अनऑर्डर्ड एरे से प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करें। तो हमारा जो पहला इंप्लीमेंटेशन हम देखने जा रहे हैं वो सॉर्टेड एरे से प्रायोरिटी क्यू का इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉर्टेड एरे है और इस सॉर्टेड एरे में एलिमेंट्स 10 हैं, 20, 30, 40 एंड 50 है। आपको इंसर्ट 35 करना है। सो 35 एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले इस एरे में फाइंड करेंगे कि 35 की पोजीशन क्या होनी चाहिए और उस पोजीशन पे इंसर्शन कर देंगे। सो 35 को इंसर्ट करने के लिए यू विल स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन। सिंस 35 इज ग्रेटर देन 10, सो यू विल मूव अहेड।
Since 35 is greater than 20, then you move ahead. 35 30 से भी बड़ा है, इसलिए हम यहाँ चले जाते हैं, लेकिन 35 40 से बड़ा नहीं है, इसलिए 35 का इंसर्शन 30 और 35 के बीच में हो जाएगा. So after the insertion of the 35, we have the array like this. Next मुझे 5 इंसर्ट करना है. You see, you start searching the array और आपको फाइंड करना है कि 5 की appropriate position कहाँ होनी चाहिए जहाँ पे हम इंसर्ट कर सकें. So if you compared the 5 with the first element, you found that 5 is smaller than the first element. We cannot move ahead, so we insert the element 5 at the first position, and all the elements starting from 10 will be shifted one step ahead. It means 10 will be shifted here, 20 will be shifted here, 30 will be shifted here, 35 will be shifted here, and 50 will be shifted here. So after the shifting, we have the array like this. And finally you can insert the element 5. It means for the insertion of the item, you require some shiftings. Now to insert 30, you will once again find out the appropriate position for the insertion. So since 30 is larger than 5, you will go to this place. 30 is larger than 10, so you will go to this place. 30 is not larger than this, but 30 is equal to this element. Even in this case, you will move ahead. So it means if the element or the element to be inserted is greater or equal to the available element in the queue in the array, then you will move one step ahead. So 30 is larger than 30 is equal to 30, you move ahead. Now 30 is not larger than 35, you will stop and you will shift all the elements starting from 35 one step ahead. It means 35 will be shifted at this place, 40 will be shifted at this place, 50 will be shifted to this place. So now after the shifting, a part of the array becomes like this, and then you will insert this 30 at this position. Rest of the elements will remain same. So you have the array or you have the priority queue like this after the insertion of element 30. Now in case you have to insert the 60, when you start searching the array, 60 is larger than all the elements in the array. So once you reach here, you will see that you have crossed every element present in the array. So there is only one possibility of the insertion of this element, that you insert at the last position. So we have seen almost all the cases for the insertion of an item in the priority queue, where the priority queue has been implemented using the array. If you see clearly that what is happening here, that you need to search the position where your element should get inserted. So searching the position at which you need to insert the element. Another thing is that you require the shifting of the element. Let's say you have an n size array. Then if you have found that the element should be inserted at the ith position, then your search requires I time and the n minus 1 element will be required to be shifted one step ahead. So I plus n minus I is the effort which is required. It means n effort is required. It means order of n effort is required. So order of n effort is required for the insertion of the items in the array implementation of the linked list. Let's see the algorithm. You have to insert an element which is the key. आपको key insert करना है इस array में, इस priority queue में, और आपने ये देखा कि ये positions हैं 0, 1, 2, 3 और 4. Let's say जो last index है वो n है, तो last index नहीं, ये size है array की, इसका मतलब last index n-1 होगा और सबसे छोटा index 0 होगा. की को सर्च करने के लिए आप 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन आप देखेंगे कि अगर की AI एलिमेंट से बड़ा है तो आप आगे शिफ्ट कर जाएंगे, और जहां पे भी हमें ये कंडीशन फेल मिलेगी हम रुक जाएंगे या हम स्टॉप करेंगे. साथ ही साथ हमें यह भी इंश्योर करना है कि हम एरे को पूरा ना क्रॉस कर जाएं, तो इसलिए I की जो अपर लिमिट है वो n-1 है. अगर I n-1 पोजीशन पे पहुंच गया है, इसका मतलब है कि इंसर्शन हमें लास्ट पोजीशन पे करना है. नाउ
आपको इस लूप से ये पता चलेगा कि किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। देन आपने एरे इंसर्शन फंक्शन पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर की सीरीज में, जहां पे आपने देखा कि ith पोजीशन पे किसी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो आपको ith पोजीशन ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स को एक आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहां पे देखें कि हमने क्या एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज किए हैं, ए, एन और की तो गिवन है, हमने अपनी तरफ से केवल आई वेरिएबल यूज किया है। ये आई वेरिएबल के कारण इसका स्पेस फंक्शन 1 होगा और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा 1 मानी जाएगी। यहां पे हम n शिफ्टिंग्स कर रहे हैं या हम सर्च ऑपरेशन करने के लिए कुछ कंपैरिजंस कर रहे हैं। तो सर्च प्लस कंपैरिजन या सर्च प्लस शिफ्टिंग विल रिक्वायर n टाइम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो चूंकि n ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं, इसलिए इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी थीटा n होगी। आइए अब एरे इंप्लीमेंटेशन में डिलीशन ऑपरेशन देखते हैं। डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रायोरिटी क्यू से सबसे छोटा एलिमेंट डिलीट होना चाहिए। प्रायोरिटी क्यू से सबसे छोटा एलिमेंट अगर हम डिलीट करेंगे तो आगे के सभी एलिमेंट्स को एक पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमें n-1 शिफ्टिंग करनी होगी। इस डिलीशन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट है ये एलिमेंट्स। अगर आप एक बार और डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट डिलीट होगा। 30 ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो वंस अगेन, अगर एरे की साइज n है तो वी रिक्वायर n-1 शिफ्टिंग्स। अगर आप फिर से डिलीट करेंगे तो ये एलिमेंट डिलीट होगा और 40 ऑनवर्ड सभी एलिमेंट्स एक एक पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो इस डिलीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रिजल्ट ये आएगा। सो डिलीशन के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहले तो हम उस एलिमेंट को सेव करें किसी वेरिएबल में जिसको डिलीट करना है, वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इस सिनेरियो में, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स को पीछे की तरफ शिफ्ट करें। सो दीज आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड हियर। आइए इसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। यहां पे अगर हम ये मान लें कि एरे में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, सो लास्ट इंडेक्स विल बी n-1. So we have been given an A array which is having n elements. So we have to delete the first element. It means the 0 index element. अगर हम 0 इंडेक्स एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो इसके लिए एरे के प्रिमिटिव ऑपरेशंस में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, एरे डिलीशन। 0th एलिमेंट मतलब 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट को हम x वेरिएबल में सेव कर लेंगे। एरे डिलीशन इंश्योर करेगा कि 0 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं या 0 इंडेक्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करें, एंड देन फाइनली हम डिलीटेड आइटम को रिटर्न कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एल्गोरिथम में हमने केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया, x। साथ ही साथ आप एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करेंगे एरे डिलीशन फंक्शन में, जो कि एरे लूप के लिए काउंटर होगा। तो हमने टोटल 2 वेरिएबल्स यूज किए। 2 वेरिएबल को मान सकते हैं हम कि ये स्पेस फंक्शन है, और irrespective of the size of the array, the space complexity will be θ1. It means constant value. अगर हम इसमें डिलीशंस को ध्यान से देखें तो 2 स्टेटमेंट हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि एरे डिलीशन फंक्शन में n-1 शिफ्टिंग ऑपरेशंस होंगे। सो n-1 शिफ्टिंग ऑपरेशन प्लस एक रिटर्न स्टेटमेंट मेक्स आउट टू n। इसका मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी θn होगी। हमने अनऑर्डर्ड एरे को इसलिए डिस्कार्ड किया था इंप्लीमेंटेशन के लिए कि वहां पे ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन और डिलीशन दोनों प्रोसेस के लिए होती थी। लेकिन यहां पे हमें फिर से ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n मिला, जबकि हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसी लिस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो इंसर्शन या डिलीशन में सेव हो जाए, या फिर
हम रिड्यूस कर पाएं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n से। तो इसका एक तरीका है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरे यूज करें। डिसेंडिंग ऑर्डर एरे अगर आप यूज करेंगे तो 35 के इंसर्शन के लिए प्रोसेस सर्च का होगा। सर्च के कोरस्पॉन्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको यहां इंसर्ट करना है, सो आगे के एलिमेंट्स आप शिफ्ट कर दीजिए। सो यू कैन नॉट सेव द शिफ्टिंग ऑपरेशन इन द इंसर्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू इंसर्ट दिस 5, so you will have to cross every element, you have to compare with every element, then you will reach here, you have come to the end of the array, so insertion will take place as the last element. So आपको या तो सर्च करना है और या तो सर्च करना है या तो शिफ्टिंग करना है। तो सर्च और शिफ्टिंग दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n होगी, दोनों मिला के जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी। सो एरे इंसर्शन करने के लिए आपने सर्च किया और सर्च करने के बाद शिफ्टिंग कर दिया एरे ऑपरेशन का यूज करके। तो यहां पे भी एक ही वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, तो θ1 विल बी द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चूंकि n ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं इसलिए θn विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ अगर आप डिलीशन करें तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि हम लास्ट एलिमेंट अगर डिलीट कर दें तो किसी शिफ्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी। सो अगर हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो वी डू नॉट रिक्वायर एनी शिफ्टिंग। व्हाट वी रिक्वायर, वी ओनली रिक्वायर टू सेव दिस एलिमेंट इन सम x वेरिएबल, देन वी विल रिड्यूस द साइज ऑफ द एरे बाय 1 n equals to n-1, and finally we will return this element. So there are only 3 statements required for the deletion. So time complexity for this operation will be θ1 because 3 will be treated as the constant, and you require only one element extra or one space extra, that is x, so the space complexity will also be θ1. So here you have saved some space. Another implementation can be through the linked list. You can implement the priority queue using the linked list. यहाँ पे अगर हम ascending order linked list माने और हमें किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 इंसर्ट करना है, तो आप 15 को स्टार्टिंग पोजीशन से सर्च कर लें। अगर ये 15 बड़ा है 10 से तो आगे चले जाएं। इनकेस अगर आपको 25 इंसर्ट करना है तो आप इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, पहले आप इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देन इससे कंपेयर करेंगे, इससे भी ये एलिमेंट बड़ा है तो आगे चले जाएंगे। लेकिन इससे बड़ा नहीं है तो इसलिए 20 के बाद इस नोड का इंसर्शन हो जाएगा, इस डाटा वैल्यू का इंसर्शन हो जाएगा। सो यू विल इंसर्ट लाइक दिस। सो आपको यहां पे करना क्या है, सर्च करना है। वर्स्ट केस में सर्च करके आप लास्ट पोजीशन तक पहुंचेंगे, इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस ऑपरेशन की वो θn मान सकते हैं आप, या बिग O n मान सकते हैं, नॉट θn, बिग O n। व्हाई नॉट θn? बिकॉज θn n complexity is not required or n comparisons are not required always. We require maximum ON, because ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना हो। इफ यू हैव टू इंसर्ट दिस 5, so that will be inserted at the first position. In that case we will require less effort. So linked list implementation से हम काफी टाइम सेव कर पा रहे हैं। इसके एल्गोरिथम देखते हैं। अगर हमें यहाँ इंसर्शन करना है, so we take Q as null and P at the first node in the linked list. सर्च करने के लिए जब तक P नल ना हो जाए और की P के इंफॉर्मेशन से बड़ा हो, P हम यहां पे ले रहे हैं इस नोड पे, हम आगे चलते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 25 को इंसर्ट करना है, सो यू हैव टेकन Q एज अ प्रीवियस नोड ऑफ द फर्स्ट नोड, सो Q इज नल एंड P इज एट द फर्स्ट नोड। देन 25 P से बड़ा है तो Q यहां शिफ्ट हो जाएगा एंड P यहां पे। 25 20 से भी बड़ा है तो Q यहां शिफ्ट हो गया और P यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको Q के बाद 25 को इंसर्ट करना होगा, क्योंकि 25 इज नॉट ग्रेटर देन P, सो आप Q के बाद इस नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। सो यू सी, while key is greater than or equal to p.info, you will move ahead, and then you come out of the loop wherever this condition is failed. अगर Q null है तो आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर देंगे। ऑब्वियसली अगर मेरा 5 को इंसर्ट करना है तो P कहीं पे भी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, आप पहले ही इस नोड पे रुक जाएंगे। सो आप इंसर्ट बिगिनिंग करेंगे। लेकिन अगर आपका P कहीं पे भी आगे प्रोग्रेस किया है,
in that case you will insert the node after Q, not P, after Q. जैसे कि यहाँ पे Q इस नोड को डिनोट करता है, P इस नोड को डिनोट करता है, तो Q के बाद आपको इस नोड को इंसर्ट करना होगा. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपने P, Q और एक नोड अपनी तरफ से लिया, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1 होगी, 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल और 3 एक्स्ट्रा स्पेसेस. और चूंकि आपको सर्च करके आगे जाना है तो बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, पहले ही पोजीशन पे इंसर्ट करना हो, और वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n होगी. तो वी हैव सीन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस. अगर आपको फर्स्ट नोड को डिलीट करना हो, सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. यू जस्ट डिलीट दिस फर्स्ट नोड एंड शिफ्ट द स्टार्ट टू द नेक्स्ट नोड. So if everything is going well, you are saving the information of the first node in some x variable. You are saying that the first node is P, then you are shifting the start to the next node, means the second node, and finally you are returning the x information. एक काम आप और कर सकते हैं कि आप given node या फिर जो नोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट नोड जिसको आप डिलीट कर रहे हैं, उसकी मेमोरी को फ्री कर सकते हैं. So it is a constant time operation. So θ1 is the time complexity, and its space complexity will also be θ1 because you are requiring a P variable and X variable, the two variables. हम heap से भी implement कर सकते हैं priority queue को. heap implementation के लिए हम implicit binary tree representation consider करेंगे. implicit binary tree representation में अगर मेरे पास एक एरे है तो ऑटोमेटिकली एरे के पोजीशंस को एज्यूम किया जा सकता है बाइनरी ट्री के नोड की तरह से, और अगर 0 पोजीशन पे मेरा पेरेंट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2i + 1 पोजीशन पे होगा और राइट चाइल्ड 2i + 2 पोजीशन पे होगा. अगर मेरा चाइल्ड j पोजीशन पे है तो पेरेंट i - 1/2 पोजीशन पे होगा. आप देख सकते हैं 3 - 1/2 and 4 - 1/2 both are referring to the 1 index. Now अगर आपने ये वाला इंप्लीमेंटेशन किया है तो किसी भी इंसर्शन प्रोसेस के लिए, फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में आपको 14 इंसर्ट करना है, तो 14 आपको मैक्सिमम इंडेक्स के बाद इंसर्ट करना है. अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स पहले से थे तो 11th एलिमेंट की तरह से 14 को इंसर्ट करना है. एंड देन चूंकि हमारी हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हम पेरेंट से कंपेयर करके इस इंफॉर्मेशन को ऊपर की तरफ पहुंचा देंगे जहां तक मेरी कंडीशंस सेटिस्फाई होगी. सो यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट स्टेप 14 हैज मूव्ड टू 1 level up. In the next step 14 has moved to another level up. In the next level you say that 14 cannot be moved ahead, so 14 has to be fixed here itself. So आपने log n ट्रेवल किया, या फिर आप कह सकते हैं कि लीफ नोड से मैक्सिमम आप रूट नोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, इसलिए इस इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी log n हो सकती है. अगर आपको डिलीशन करना है तो आप सबसे रूट नोड को डिलीट कर दीजिए, मैक्सिमम जो लास्ट इंडेक्स वाला नोड है उसको ऊपर पहुंचा दीजिए, एंड देन चूंकि हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करके 31 को नीचे की तरफ आप शिफ्ट कीजिए जब तक कि वो ऐसी पोजीशन पे ना पहुंच जाए जो कि हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो. सो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेशन बाइनरी हीप इंप्लीमेंटेशन है, जिसमें कि log n टाइम में हम इंसर्शन भी कर सकते हैं और log n टाइम में डिलीशन भी कर सकते हैं. धन्यवाद.